you please excuse me for the same. Anyway, I wish you a very happy New Year. This New Year should bring a change in Delhi, and I hope you all will help us to bring a Congress government here. With your communication skill, whatever we promised, Congress has delivered in its history. Congress strength is country's strength. Congress history is country's history. So whatever Congress has promised, have delivered, we are going to deliver. I am here as a president of the Karnataka Pradesh Congress Committee and the Deputy Chief Minister of Karnataka to launch very loud program. 100 years back, Mahatma Gandhi ji took over as the Congress president in 1924 on 26 December. So 100 years we just celebrated. In the same place, we, myself, Mr. Siddaramaiah and all our leaders went to that well. There is a well called Gandhi well. It is called Gandhi well. It is Sarovara named as. So we took out a water from that well and we split it in the streets of Belgaum. Watched the streets as we watched the state from 30, whatever the BJP government had given to us. Now on the same day, we start launching our 5 guarantee programs. First we launched this Gruha Jyoti, lighting the lamp where all the families' houses has to be lit. The second, we decided to launch Gruha Lakshmi. Srimati Priyanka Gandhi, granddaughter of Indira Gandhi, was being invited. She came to launch. Before the launch, she said, DK, politicians have a different name, but I am coming here to launch this. I want a guarantee from you. She said, she asked me and Siddaramaiah to sign a check. So big bold check was being placed, 2,000 rupees to every woman. So we both signed a check, and the same check of 2 guarantees was being distributed to entire state, all the common man. And we assured them, in the first cabinet, we are going to take a decision on implementing this program. And all those 5 programs, after we just took the oath, we came to Vidhan Sauda, we took a decision. Within 3 months, all the guarantees was being implemented. You know, women in the entire state are traveling free in bus. 10 kilo of rices has been given to every household, every member of the family, and about 3,000 rupees is being given to the unemployed youth, and Gruha Jyoti 200 unit of power has been given, and Gruha Lakshmi 2,000 rupees is being given to everyone. About 56,000 crores have been allotted in the budget, and 1 crore 22 lakh women are getting every month 2,000 rupees. And there's a very big story which you might have heard about. Lot of economical change has happened in every family. About 4,000 to 5,000 rupees is reaching them. All of them are happy. The entire economic situation of a common man, shopkeeper, where we have tourist destinations to reach them, almost all women are being benefited. We believe. Why I am telling this story before that we started from Mahatma Gandhi's place where he took the presidency, because Mahatma Gandhi's was the main agenda was to see that every section of the people of the country should be well taken care. So we decided, and
and now here I have come here to launch this Pyari Didi Hogi Yojana. This is, we are going to give, I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented, and the rest will be announced later. Today I am here to launch Pyari Didi Yojana, 2,500 rupees to every woman as per the Karnataka model. So let us first have our play cards. Thank you. Thank you. Video. Take एक में रुकिए। प्रॉपर हेलो, अब एक आपको छोटा सा कर्नाटक की सक्सेस स्टोरी का वीडियो हम यहाँ दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को इस बात का आभास हो कि कितना बड़ा परिवर्तन कर्नाटक में ही हुआ है। आवाज लाउड था, थोड़ा सा ताकि सुनाई। आवाज कम। कोड़ी साथ मटारे इंदा इधर मोतैदा 5 ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಂದ ನಿಂಗೆ 10 ಜನ ಬಂದವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಗಾರ ಟ್ರೆಜರಿ ಇದು ಮಾಡ್ರ ನೀ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಲ ಏನದ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ನಮ್ಮ 10 ಕಂತಿನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಸಿದರು 10 ಕಂತಿನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸೊಸೆ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೇಷನರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಿಲ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ದು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪುಣ್ಯ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಾಕಿದ್ರಕ್ಕ 25,000 ಆಗೈತಿ. 15,000 ಪೆಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರು ಬಿಡಾಕಿಪ್ಪ ಅಂತ. मेरा एफएल उसके बाद अपने ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದಿಂದ 200 ಮಂದಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ. ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ವೃದ್ಧೆ ಅಕ್ಕತಾಯಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ಧೆ ಅಕ್ಕತಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ಅಕ್ಕತಾಯಿ ವೃದ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 30,000 ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಟರಿಗೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ 14 ಕಂತು ಬಂದಾವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ನಂದು ಸೇರಿ 45,000 ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲ ಅಂತಂದು ತೊಗೊಂಡು ಅದು ರೇಷನ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಕನಸಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎದಕ್ಕರ ದುಡಿಯೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳು. भाषा के दायरे के पार कर्नाटका के लोगों की प्रसन्नता, खुशी, उनका सामर्थ्य, उनकी सफलता आपके चेहरों में भी प्रतिबिंबित हो रही थी. हम ये देख पा रहे थे. अब अगले कुछ क्षण के लिए हमारा लॉन्च वीडियो जो हमारी स्कीम का है वो भी हम कुछ सेकंड पिछले 10 साल में दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी बदतर होती गई है. एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ एक निकम्मी सरकार. बीते 10 सालों में दिल्ली की महिलाओं को हर संकट से दो चार होना पड़ा है. सिलेंडर के बढ़ते दाम हो या रोजमर्रा की जरूरतों की बेलगाम कीमतें, दिल्ली की महिलाओं के लिए घर का चूल्हा जलाना और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मानो सपने जैसा हो गया. कांग्रेस पार्टी दिल्ली की हर माता बहन की तकलीफों को समझती है. कांग्रेस पार्टी 2 वक्त की रोटी और चूल्हा जलाने में आने वाली मुश्किलों को जानती है. सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के इन्हीं विचारों पर चलते हुए कांग्रेस ने ये तय किया है कि सरकार बनते ही दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और ये कोई एहसान नहीं होगा बल्कि सरकार का कर्तव्य होगा, जिसे पिछले 10 साल में भुला दिया गया है. ये 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को उम्मीद देंगे, एक बेहतर जीवन जीने की उम्मीद, 2 वक्त की रोटी की उम्मीद, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद, न होने की उम्मीद और सबसे बड़ी उम्मीद होगी दिल्ली की हर महिला के सशक्तिकरण की उम्मीद. और कांग्रेस का ये वादा, ये दावा यूं ही नहीं है बल्कि कांग्रेस का इतिहास है वादे निभाने का, अपनी जबान पर खरा उतरने का. और इसका उदाहरण है कर्नाटक.
जहां कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया और चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने इस वादे को कूड़ेदान में नहीं फेंका, बल्कि गृह लक्ष्मी योजना के जरिए कर्नाटक की महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए जमा करके अपना वादा निभाया। हमने जो वायदा कर्नाटक के अपने माताओं बहनों से किया था, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए दिया। और कर्नाटक की ही तरह हम दिल्ली की महिलाओं से भी वादा निभाएंगे, हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। प्यारी दीदी योजना महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए होगी हर जरूरत पूरी। कांग्रेस है जरूर। अब मैं पत्रकार वार्ता की अंतिम पायदान पर अनुरोध करता हूं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की। धन्यवाद दुबे जी। पत्रकार बंधुओं, आप सबका स्वागत है और इस मौके पर मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कर्नाटक से स्पेशली हमारे बीच में आए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वहां के कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष माननीय डी.के. शिव कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस पत्रकार वार्ता में पहुंचने के लिए आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब का, जो लगातार दिल्ली की चुनावी रथ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई सुखविंदर सिंह डैनी जी, हमारी प्रखर आवाज और महिला कांग्रेस की जुझारू अध्यक्ष दिल्ली की अपनी बेटी आदरणीय अलका लांबा जी, हमारी एक और छोटी बहन एक प्रखर वक्ता और आज वजीरपुर से कैंडिडेट के रूप में भी अपनी मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज करा रही रागिनी नायक जी, हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और महरौली से हमारी कैंडिडेट पुष्पा सिंह जी, एक और इस तरफ हमारी छोटी बहन बैठी हैं अरुणा जी, जो पूर्व में 2 बार काउंसलर भी रही और आज नरेला विधानसभा सीट नंबर 1 से मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही वहां से कैंडिडेट अरुणा जी। धन्यवाद करना चाहता हूं दुबे भाई जी का, जो लगातार हमारा और आपका ये जो कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात को 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि दूर होगी महंगाई की मजबूरी, दूर होगी महंगाई की मजबूरी, 2500 रुपए से करेंगे महिलाओं की उम्मीदें पूरी। और इसके साथ साथ जो हमारी टैगलाइन है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। तो कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के साथ, जैसा कि आदरणीय डी.के. शिव कुमार साहब ने कहा, हमारी हिस्ट्री है, हमारी एक परंपरा है और मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने जो क्रेडिबिलिटी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपनी रखी है, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार जी हमारे बीच में है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जो बातें आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने कही हैं उनको एक बार जरूर थोड़ा हिंदी में आप सबके लिए बोलना चाहूंगा, उसको हिंदी में अनुवाद है। तो आदरणीय शिव कुमार जी ने जहां इस योजना के बारे में जो कर्नाटका में 2000 रुपये के रूप में गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में चर्चा की, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डी.के. शिव कुमार जी ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम जो 2000 रुपये हर महिला के घर में पहुंचाने का काम कर रही है और इससे लगभग 1.22 करोड़ महिलाओं को
हर माह अब तक 35,109 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ क्योंकि डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर जो होता है, हर महिला को सीधा उसके बैंक के खाते में वो पैसा पहुंचता है और उसी का अनुसरण करते हुए हम भी उसको डीबीटी के द्वारा जो हमारी योजना है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आदरणीय शिव कुमार जी ने गृह ज्योति योजना जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त है और 1.62 करोड़ परिवार को सीधा सीधा इफेक्ट करती है, जिसमें अब तक 11,810 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसकी चर्चा की। आदरणीय डीके शिव कुमार जी ने अन्न भाग्य योजना जिसके तहत 10 किलो चावल 4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाते हुए 9104 करोड़ रुपए इस योजना पर कर्नाटक सरकार ने खर्च किए हैं। और इसके साथ साथ युवा निधि जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ को दी जाती है और इसका लाभ लेने वाले 1,89,692 युवाओं को इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, जिसमें लगभग 216.93 करोड़ रुपए अभी तक कर्नाटक सरकार खर्च कर चुकी है। आपने बताया कि इन योजनाओं से हर माह परिवार का 4,000 से 5,000 रुपए बच रहा है, अर्थात सीधा सीधा इन योजनाओं के द्वारा हम हर परिवार को कर्नाटक के लगभग 4 से 5,000 रुपया हर महीना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही उनकी जो जीवन है वो बदला है और उसका बहुत सुंदर जो पिक्चराइजेशन भी और मैं कहूँ कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसका भी आप लोगों ने अवलोकन किया, भी आप लोगों ने देखा। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से कर्नाटक ने ये सभी योजनाएं लागू की हैं और खुशी इस बात की भी है कि अपनी बात को मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाने में पहली कैबिनेट में मंजूरी देते हुए जो गारंटीज कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने रादर अपने मैनिफेस्टो में दी थी, उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करते हुए लोगों का इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचाना हमने शुरू किया। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे तेलंगाना है, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है या इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारे पास थे, जो जो वादे हमने किए हैं वो हमने पूरे करके दिखाए हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस में हुआ है और इसी वजह से मैं मानता हूं कि लोगों का विश्वास जो है लगातार कांग्रेस में बढ़ रहा है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी एक बहरूपिया, एक सौदागर सपनों का वो काबिज है और लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल हो चुके हैं, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के हर वो सपने जो उन्होंने दिखाए थे आज कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 11 साल में जिस एजुकेशन मॉडल की बात की हो, बिजली फ्री देने की बात की हो, पानी फ्री देने की बात की हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो, उन सभी पहलुओं पर आदरणीय केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय डीके शिव कुमार जी विशेष रूप से कर्नाटक से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आपके द्वारा इस योजना की हमने लॉन्चिंग की है। आने वाले समय में हम कई ऐसी और योजनाएं लेकर आपके बीच में आएंगे जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं,
मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक ने की है उम्मीदें पूरी, दिल्ली ने कहा है कांग्रेस है जरूरी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी यहाँ पहुंचे उसके लिए विशेष धन्यवाद। Before I just take some questions, I would like to request my friends, why we showed all these clippings. It is not our clippings. It is the media which played. You saw some public TV, TV9 and some media which has played the TV. We did not make this because some 10 months is there, some 14 months, 15 months, 16 months, all of them have collected. Not even a single mediator has been involved in this. It is a direct benefit transfer. One thing I would like to request all my media friends. When we announce this guarantee, our Honorable Prime Minister of this country, Mr. Narendra Modi Saab, in Madhya Pradesh, he said that the Karnataka government will be bankrupt one day. But before they started the campaigning, they started releasing the funds. Now even in Maharashtra, the same thing happened. Ultimately, they had to rely upon our guarantee. So this guarantees, Congress guarantees was being implemented not for a political reason. It was being implemented for the welfare of the people because of the price rise. Price rise in all sections of the society. Either it may be gas, it may be vegetables, it may be common, any small family which has to run, they could not only the petrol, diesel, everything was being increased, and they had promised they used to double the income of the common man. That was the promise given. I am not speaking on 15 lakh rupees which they had promised, or Jan Dhan account, I am not telling that. After that also, whatever they had promised to the people, they could not deliver. But now they are copying our guarantee. In all the states, it may be Madhya Pradesh, it may be Haryana, it may be Mumbai, and they are copying it. Now, whatever Congress party, they could not change, even at the time of Manmohan Singh ji government. Whatever we promised, as in the form of amendments, the constitution amendments, we are given a guarantee. Either it may be food security, it may be education, it may be right to information or employment. Everything has been given by the Congress party through in proper documentation through the constitution. So I would like to assure the people of Delhi, we are here, we have ruled this country for a very long time. We are confident we will come back again, good days will start, and we request you, the people of Delhi, to give us one more opportunity to prove better, to change Delhi and change the country. Thank you. Rest my other leaders. I thank, I thank my All India in charge, Qazi Saab and Yadav Saab, President, and all my women leaders are here. They are very much worried what to tell to the women of the Delhi. Now they have a weapon. They will go to every house. Whatever we promise, we deliver. That is our strength. That is why I am here. Please, any questions, I am ready to take. सर देवेंद्र जी, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि हाँ आपसे है, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलेंगे ना। जी आप बोलिए। सर पहला सवाल तो इस योजना को लेकर है कि आप कर्नाटक मॉडल के नाम पर दिल्ली में वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक मॉडल के नाम पर दिल्ली में वोट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है दिल्ली कांग्रेस शीला दीक्षित का मॉडल भूल गई है। आप महिलाओं की योजना लागू कर रहे हैं, शीला दीक्षित की तस्वीर भी नहीं है, शीला दीक्षित के मॉडल का जिक्र भी नहीं है, जो आपका पूरा अभी तक का कैंपेन है। ऐसा क्यों है? क्या दिल्ली कांग्रेस शीला दीक्षित को भूल गई है, और ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने पहले किया है और आगे करेंगे। शीला जी दिल्ली के हर दिल में बसी हैं। इस बात को हम सबको गर्व है कि 15 साल जहां शीला जी ने अपने कुशल नेतृत्व से इस दिल्ली को संवारने का काम किया, वहीं हम सबका ये फर्ज है कि हम आगे देखें। उनसे प्रेरणा लेते हुए निश्चित ही कर्नाटका की जो हमारी
सरकार है जिसका सक्सेस मॉडल अभी आपने देखा, जो वादा किया वो पहली कैबिनेट में पूरा किया और उसको ना सिर्फ लागू किया, उससे लोगों की जिंदगी बदली है। तो मैं हम उनको नमन भी करेंगे और आगे भी उसके साथ साथ एक लेट हर स्पीक वन एट अ टाइम सबके जवाब मिलेंगे भाई साहब, जरा एक सेकंड लेट द लेडी। सबके जवाब BJP allegation against the Karnataka government is that the schemes are not really making the financial situation in Karnataka very bad. It is going from bad to worse in Karnataka because a number of schemes have been announced by Karnataka government. See, whatever we have promised to the people of Karnataka, we have kept in the budget. And all the financial strength, we have more than 3.5 crores is our budget. In that 56,000 crores has been in mark. Not even, it may be 10-15 days delay of transfer. But till today, we have implemented, government is strong. After our Prime Minister, he said that our government will collapse on the financial crisis. But they had to copy. Before this election started in Madhya Pradesh and in Maharashtra, they started copying our guarantee scheme, and now they have come forward on that. I am sure, you know, I think you may be knowing that Karnataka is the second biggest financial strength after Maharashtra. We are giving the highest taxes to this country. Karnataka is so strong, so sound financially, and we are going to implement still further. My question is to you. So you have talked about the replica of the Rajasthan model into the capital city. In the country they are implementing, BJP is copying us. Many leaders or many MLAs from your state, they have alleged that you are spending so much on the guarantees announced by you. There's an implication of 50 to 60,000 crore annually, and this has taken a hit on the developmental goals. Is this not an development? Every family is being developed. Every common man is development. Money is being circulated. All shops are very happy. All common man can travel. Is this not a development? Our development is to create more strength to an individual. If you are strong, your family is strong. If I am strong, my party is strong. That is what we look at. But sir, the bus fare price, the bus fare has been hiked, metro fare has been hiked. No, that is, see, either it is a metro or the bus rate, there is a common the standard. Whenever the diesel prices hike, whenever the salary hike, there is a procedure. It not automatically it rises. The power prices hikes. It is all a fixed that has been decided earlier itself. Earlier at the Krishnaji's time only we decided whenever the diesel prices hike, naturally the prices of a ticket has to be high. Mohit. It is all the corporations which run that. It has its own strength. It is not like Delhi, which has been petrol, diesel. What was the rate higher? What is the oil price? That was not been reverted here. Deputy CM, Karnataka is a huge state. How does it possible that in Delhi it will be implemented 2,500? Because the revenue generated is must. Anyway, let us first, please help us to form the government. We'll give an answer to it. आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी ने पहले ही प्यारी दीदी योजना जैसी एक योजना लागू की है। 2100 रुपए महिलाओं के खातों में डाले। पंजाब से लेकर वो विधवा यहाँ तक पीट रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या विरोध कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी की योजना का? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कभी भी महिला के सशक्तिकरण के विरोधी नहीं हैं और कभी भी हमने इस योजना का विरोध नहीं किया। लेकिन निश्चित ही सवाल उठता है केजरीवाल जी और उनकी सरकारों पर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन पहले कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर लीडर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी, सब पंजाब के जो हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो आए थे और पंजाब में किए गए इसी प्रकार के वादे को निभाने की बात कहकर गए हैं और हमारी माताओं बहनों को आगाह कर गए हैं कि इनके झांसे में ना आए। अक्सर हमने और आपने ये देखा है कि केजरीवाल जी जब भी कोई योजना लागू नहीं कर पाते
या कहीं फंस जाते हैं तो वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो एलजी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा ये सवाल है कि पंजाब में तो आपकी फुल फ्लेजेड सरकार है और आपने मात्र 1000 रुपया उनको कमिट किया था, इसी तरीके के फॉर्म भरे गए थे, कार्ड्स दिए गए थे, तो वहां पर क्या कारण है कि 34 महीने से उसको लागू नहीं कर पाए? हमें केजरीवाल जी और उनकी सरकार की मंशा पर सवालिया निशान है, ना कि इस योजना पर। हमने बहुत सोच समझकर ये 2500 जो महिलाओं को देंगे, निश्चित ही इससे हमारे जो महंगाई लगातार बढ़ी है पिछले सालों में, जो बेरोजगारी बढ़ी है और जिससे परिवार का एक एक खाना जो खाना दाना भी है वो मुश्किल हो गया है, उससे निजात दिलाने के लिए और महिला को सशक्त करने के लिए इस योजना को हम लागू कर रहे हैं। सर कल आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बट वो कैंसिल हो गया, क्या पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर आया? नहीं, विल टेक इट लेटर। नहीं करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कल ही बात क्लियर हो गई थी और बहुत जल्दी हम उसको करेंगे। बट टुडे आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर इशू। सॉरी, एक मिनट, अभी तो सॉरी। हाँ, थैंक यू। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्षा अलका लांबा जी से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोगों का एक कृतज्ञता ज्ञापन करें। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं मेरी दिल्ली की मेरी प्यारी बहनों की जो समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी उसे राहत देने के लिए आज मेरी प्यारी दीदी योजना का ऐलान करने के लिए मैं मेरी दिल्ली मेरी प्यारी बहनों की ओर से पूरी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का धन्यवाद करना चाहती हूँ। डीके शिव कुमार जी की अध्यक्षता में, कांग्रेस के अध्यक्ष है कर्नाटक के, इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, आज उप मुख्यमंत्री भी हैं। गृह लक्ष्मी योजना की सच्चाई डीके शिव कुमार जी खुद यहाँ पर आकर बता रहे हैं और ये मेरे हाथ में 2 कॉपी अभी आई है, पासबुक की कॉपी है, ये मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। ये कर्नाटका की मेरी महिला बहनों की बैंक पासबुक है, उसमें आप 2-2000 रुपया जब से सरकार बनी है उसे देख सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी इसी तरह की पासबुक पंजाब की बहनें भी अपने हाथ में लेकर आएंगी और उनके यहाँ पर लाने की उनकी व्यवस्था कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी खुद भगवत सिंह मान जी आएंगे और बहनें लाएंगे। इसी तरह से वो बैठकर पासबुक दिखाएंगे कि क्या पंजाब की बहनों को 36 महीने हर महीने 1000 रुपया 36,000 रुपया मिला या नहीं मिला। दुख की बात है कि पंजाब की बहनें दिल्ली के मुख्यमंत्री के शीश महल 33 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पैसा था, दिल्ली का पैसा था, महंगाई बेरोजगारी की राहत के लिए बहनों को मिलना था, 10 साल में 1 रुपए की मदद नहीं मिली और उन बहनों पर आरोप लगाया कि ये बहनें तो कांग्रेस द्वारा लाई गई महिलाएं हैं। चुनौती दे रहे हैं एक बार फिर से। भगत सिंह जी की कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल जी, आपने पंजाब चुनाव में भगत सिंह की कसम खाई थी कि सत्ता में आएंगे तो महंगाई से राहत के लिए मेरी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। आज झूठी कसम भगत सिंह जी की आपने खाई है। देश के प्रधानमंत्री जी आज चुनाव में कूदे हुए हैं, महिलाओं को 450 का मोदी की गारंटी का सिलेंडर देश में कहां मिल रहा है महिलाएं जानना चाहती हैं। आज महंगाई से वो त्रस्त है। मैं देवेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जब से आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है, पूरी यात्रा करके आपने दिल्ली में एक विश्वास पैदा किया है कि आज मैं जहां पर भी हम जा रहे हैं, पूरा मीडिया भी हुई इस बात को मान रहा है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से टक्कर में है। और मैं आपको कह रही हूँ, शीला दीक्षित जी की बात आई, हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं खुद उन्हें निजी तौर से श्रद्धांजलि देते हुए ये विश्वास दिल्ली को एक बार फिर दिला रही हूँ। कांग्रेस की सरकार बनते ही मार्च में पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली फैसला, 1 मार्च से हर महिला के बैंक खाते में प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपया, साल का 30,000 रुपया बनता है। ये हमारा वायदा है। पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहला फैसला हम ये करने जा रहे हैं। हमारा नारा जो आपने देखा, होगी हर जरूरत पूरी। जरूरत कैसे पूरी होगी? क्योंकि अब 2500 रुपया झूठा वायदा नहीं है।
ये हमने कर दिखाया है, कर्नाटक में बैठे हैं, चुनौती पंजाब में आपको हमने दे दी है। दिल्ली में 10 साल में पासबुक 10 साल में महिलाएं बैठी हैं दिल्ली की, वो भी ले आए हैं केजरीवाल जी, और उन्हें भी कहीं अपनी पासबुक में दिखाएं 10 साल में कोई मदद हुई है। होगी हर जरूरत पूरी, इसीलिए कांग्रेस है जरूरी। हमारा नारा है हर हाथ काम, हर हाथ कमाई। हर हाथ काम होगा और हर हाथ अपनी कमाई होगी। ये डीके शिव कुमार जी ने अभी दिखाया कि 2-2 हजार रुपए जब मिल रहे थे, महिलाओं ने उससे अपनी इच्छाएं पूरी की, अपनी जरूरत पूरी की और अपना आर्थिक सशक्तिकरण, बहुत लोगों ने अपने काम शुरू किए। तो यही कांग्रेस की पूरी तरह से सोच है कि हम यहाँ पर टेम्परेरी सरकार नहीं होगी। काजी साहब ने मुझे अभी हम बात कर रहे थे, काजी साहब ने कहा हल्का सीएम सुना है, डिप्टी सीएम सुना है, ये टीसीएम क्या है? ये टेम्परेरी सीएम, सीएम डिप्टी सीएम होता था, ये टेम्परेरी सीएम। सो ये टीसीएम कम से कम दिल्ली की जो परमानेंट समस्याओं का हल कोई टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी सरकार नहीं दे सकती। इसलिए परमानेंट समस्याएं हो चुकी हैं, उन परमानेंट समस्याओं के लिए टीसीएम नहीं, वापस सीएम देगी और वो कांग्रेस पूरी ताकत और मजबूती के साथ देगी। मैं एक बार फिर से दिल्ली की तमाम अपनी बहनों को कहूंगी, आपको ये प्यारी दीदी योजना जो है वो मुबारक हो। ज्यादा इंतजार नहीं है, 1 मार्च से सरकार बन चुकी होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार होगी। पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली बैठक, पहला फैसला 2500 रुपया दिल्ली की हर बहन को महंगाई से लड़ने के लिए हम इसका ऐलान करते हैं। और जो कहा है वो किया है, इस बात के लिए डीके शिव कुमार जी बैठे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आदरणीय डीके शिव कुमार जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे एआईसीसी सचिव प्रभारी पंजाब की धरती से आते हैं सुखविंदर टैनी जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो महरौली से चुनाव लड़ रही हैं पुष्पा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता उम्मीदवार हैं हमारे बीच में रागनी नायक जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से शुभकामनाएं, बधाई भी देती हूँ अरुणा जी आज सबको, और एक बार फिर से लड़ेंगे जीतेंगे। पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं। चाहिए इनको करने दो।